میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ریحان بھائی کہ آپ جو ہے اس وقت تھوڑا سا اسٹارٹ لے لیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ تقریباً 10 بجے تک اویلیبل ہیں. تو آپ کے سیشن کے بعد جو ہے ہم اپنی کلاس جو ریگولر ہوتی ہے، جس میں ہم لوگ میں پہلے سبق جو ہے وہ تفسیر کرتا ہوں، سبق سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں. تو ہم یہ سیشن جو ہے یہ بعد میں شروع کر لیں گے. اس سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں اپنی قیمتی جو آپ کی رہنمائی ہے وہ ہمیں پلیز ہمارے ساتھ آپ اپنی شیئرنگ کیجیے. جی ریحان بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک آپ کا بند ہے. اچھا، شاید مائک اب کھل گیا یا مائک؟ جی ابھی اوپن ہو گیا، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید پڑھنا سننا یہ سب سے بڑی سعادت ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور نے جو بات اس کے حوالے سے کہی ہے وہ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو بحیثیت مسلمان دین پہ عمل کرنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام آدمی کر سکتا ہے اس دنیا میں وہ یہ کہ اپنے مالک کے کلام کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو سلمان صاحب کی یہ کاوش اس اعتبار سے انتہائی قابل تحسین ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اپنے لیے بہت بڑے صدقہ جاریہ کا وہ ماشاء اللہ اہتمام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو لوگ اس کورس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا یہ سب سے قیمتی وقت ہے، باعتبار اجر بھی انشاءاللہ اور اپنے نتیجے کے لحاظ سے بھی. قرآن مجید کو سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بس میں مختصر یہ توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے کانٹینٹ کو سمجھنا اصل میں یہ بڑی بنیادی بات ہے. قرآن مجید کا اصل کانٹینٹ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، آخرت کے احساس میں ہم جینے لگیں اور خدا کے حضور پیشی کا ہمیں یقین ہو. جو ہدایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو ہم پورے دل سے اختیار کریں. قرآن مجید کا میسج یہی ہے، اسی کے لیے وہ دلائل دیتا ہے، اسی کے لیے وہ انذار کرتا ہے، اسی کے لیے وہ تبشیر کرتا ہے اور اسی کی پھر وہ عملی تعلیم بھی ہمیں دیتا ہے. تو آپ لوگ اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا ہمیشہ اہتمام کیجیے کہ اس کو اپنی زندگی میں بھی پوری طرح لاگو کیجیے. خدا سے تعلق کی جو اساسات ہیں، کیسے تعلق قائم کیا جاتا ہے خدا سے، کس طریقے سے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کی پسند کے اعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید ان میں سے ہر چیز کا ماخذ ہے. تو اس پہلو سے اسے پڑھیں کہ ہمیں ایک نجات یافتہ انسان بننا ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کی ہدایات کو ہمیں سمجھنا ہے. تو بس یہ ایک دو چیزیں تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پہ رکھ دوں. قرآن کے آگے تو کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی یاد دہانی ہے، لیکن میں نے سمجھا کہ جو وقت ہے مختصر اس میں قرآن مجید کا ایمفیسس آپ پہ ضرور واضح کر دوں کہ اصل میں وہ کیا کروانا چاہ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں کیونکہ ریحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ میں سے وہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس، کیونکہ ریحان بھائی کی آگے ایک میٹنگ بھی ہے، انہوں نے ہمارے پاس سے جانا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ آپ تمام لوگ اس سفر میں جو ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں، آپ لوگ اپنی کچھ شیئرنگ ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ، کیونکہ اس وقت ہمارا سیشن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچیں اور سر ریحان کو بھی آپ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں. جی آپ لوگ، جی میم سائمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، پلیز. جی سسٹم مائک اپنا اوپن کر لیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی میں سائمہ حامد بات کر رہی ہوں. میں جو ہے سب سے پہلے تو ریحان بھائی جو اس ہماری کلاس میں آج آئے ہیں، انہوں نے ٹائم نکالا ہے، بہت شکریہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. اگر میں اپنی پرسنل فیلنگس شیئر کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گی بہت اچھی اپرچونٹی تھی یہ، جس میں ہمیں آن لائن میڈیم کے تھرو جو ہے سلمان بھائی نے اور علی بھائی نے گائیڈ کیا ہے. تو اس کلاس کی برکت تھی کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ سے کلاس نہیں لی. ہم اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم جو ہے نا ایز اے فیملی جو ہے آپ کی کلاس لے رہے ہیں. میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہیں، میری مدر ان لا ہیں، بچے ہیں، تو وہ کلاس میں شامل ہوتے ہیں. آف اینڈ آن ہم مس بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم کلاس میں شامل ہوتے ہیں. تو سلمان بھائی کی کلاس کی برکت ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جو ہے اب ہم سارے گھر والے جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا، جیسے ریحان بھائی کی اس میں ایفرٹس ہیں ان کا بہت شکریہ، علی بھائی کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی حمیرہ بہن آپ کچھ اپنے ہینڈ ریز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم میری السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہماری کلاس کو اور پتہ بھی نہ چلا. اور میں تو سب سے پہلے آنٹی نیئر کا بہت 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 دل سے یہ جو ہے نا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ ان کو دنیا آخرت کی جزا دے
کہ انہوں نے مجھے آپ کے گروپ میں شروع سے ہی شامل کر لیا. ہم دونوں حج کے ساتھی تھے, ہم نے اکٹھے حج کیا, جیسے ہم واپس آئے انہوں نے مجھے آپ کے گروپ میں شامل کر لیا. میں تب سے ریگولر ہوں آپ کے گروپ میں, اور اس سے میری زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے, بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے. مطلب مجھے جو جتنا میں کوشش کرنا چاہتی تھی نا, اس سے بھی زیادہ میری ہیلپ فل جو ہے نا اس کلاس نے کی ہے میری. اگر میں اس کلاس کو جوائن نہ کرتی تو اتنا سب کچھ مجھے بالکل نہ پتہ چل سکتا. ابھی بھی مجھے اکثر جو ہے نا اس بات پہ بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کلاس کے لیے چننا, اور آپ کو دنیا آخرت کے اللہ جس کی جزا دے کہ آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا. کوئی آسان نہیں ہے کام کرنا, اور ریگولر کلاس دینا, وقت نکالنا اور اتنا کرنا بہت مشکل ہے. اور لیکن آپ نے اتنا اچھی ایفرٹ کی, اور اتنا کہ ہمارا میں ایک بات سے دعائیں کر سکتی ہوں آپ کے لیے. اور اسی طرح ہمیشہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سے جوڑی رکھے, اور آپ کو بھی نا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیتا رہے کہ آپ اس طرح قرآن سمجھاتے رہیں. آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں نا عام قرآن پاک تو تھوڑا تھوڑا مجھے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب یہ لگتا ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے. پھر میں اس کا ترجمہ دیکھتی ہوں, کچھ لفظ اگر نہیں بھی آتے پھر میں ان کو دیکھ لیتی ہوں, اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیت کس بارے میں ہوگی. تو مجھے پھر بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس قابل آپ کی وجہ سے ہوگی, اور اللہ کے کرم سے کہ میں اب تھوڑا بہت سمجھ سکتی ہوں. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اور میری جزاک تو اللہ. جگہ میں نے بھی بہت سے لوگوں کو اس میں کیا ہے, گروپ میں ایڈ کرتی رہتی ہوں وقتاً فوقتاً, اور بہت زیادہ دعوت دیتی رہتی ہوں. ان میں سے کچھ نہیں سنتے, کچھ سنتے ہوں گے. آج میری ایک بہت اچھی پیاری بہن ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے پہلی دفعہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی استقامت سے سنتی رہا کریں گی, اور وہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی جیسے نیر باجی کے لیے میں بنی ہوں, اور ہم آپ سب کے بنے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی سسٹر سدرا, آپ پلیز اپنی اگر شیئرنگ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی السلام علیکم. پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے سر کی سارے ناولس, میں نے سارے کورس سر کے سب کیے ہوئے ہیں میں نے, اور میں اس سے جو ہے میں اس سے لگن بڑھتی چلی گئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب کمی نہیں آ رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اور اس سے زیادہ اور کیا کریں. تو پھر جب لیڈیز گروپ ہے اس کے اندر سر سلمان کا یہ آیا کہ وہ قرآن شریف کو اس طرح ترجمہ اور تفسیر اس طرح چلے گی ادھر, تو پھر جو ہے وہ لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے, جو زندگی ضائع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہم زندگی دوبارہ شروع کر سکیں. تو پھر وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. شروع میں کافی مشکل ہوئی, لیکن الحمدللہ سلمان نے اتنی اچھی طرح سے گائیڈ کیا کہ اللہ کا شکر ہے آج مجھے سبق, جیسے سر فرائیڈے کو کلاس ختم کرتے ہیں تو میں ہفتے والے دن الحمدللہ اس اگلے سبق کو یاد کر لیتی ہوں, اور میں پورے ہفتے ان آیتوں کو ریوائز کرتی رہتی ہوں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کام کے. سر کا بہت شکریہ کہ سر نے جو ہے ہمیں قرآن شریف سے جوڑ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سر کو دنیا آخرت دونوں میں جزا دے, اور ہمیں بھی سمجھ کے اور زیادہ پڑھنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سر ریحان کو بہت بہت میرا سلام, کہ واقعی ان کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سر سلمان کو کسی طرح ہمارے پاس بھیج دیا ہے اس کاوش کو لے کے کہ ہم قرآن شریف کو اس طرح ترجمہ تفسیر سے پڑھیں اور یاد کریں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ. آپ میں سے ہینڈ ریز کیے بغیر بھی اگر کوئی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ مطلب اس وقت یہ اوپن فورم ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری جو بھی شیئرنگ ہوگی باقی آنے والے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی کافی موٹیویشن کا باعث بن سکتی ہیں. ہمیں الحمدللہ ایک سال میں جی ہم میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. اچھا, میں بیٹے سب سے بڑی تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں یہ ترجمہ اس کا شروع کیا. تو آغاز میں آپ کو پتا ہے میں گھبرا رہی تھی بہت, تو سب سنا رہی تھی تو بہت مجھے عجیب لگ رہا تھا. پھر میں نے کہا کہ یہ سب سنا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں سنا سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, اور میری لگن نے مجھے راستہ دکھایا. اور سلمان بیٹا آپ نے مجھے بہت انکریج کیا. تو آپ فرماتے تھے کہ میں دوسری کلاسز میں بھی آپ کا ذکر کرتا ہوں, تو وہ بڑا مجھے مطلب اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں لائن جو مجھے ملتی ہے میری ریحانی بیٹے جی سے ملی ہے, انہوں نے میری زندگی کو بہت بدلا ہے, اور بہت میری زندگی جو ہے نا چینج ہوئی ہے. اور یہاں آ کے مجھے بہت خوشی یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ سکھانا شروع کیا. تو محمد علی بیٹا جو ہے وہ گرامر بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں, اور کوئی مطلب غلطی ہو جائے تو بہت اچھی طرح کریکشن اس کی کرتے ہیں, اور وہ بھی بہت اپنی ذات میں ایک بڑا فائدہ ہے ہمیں ان کے نظر میں. تو اس لیے میں بیٹے بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے میری مطلب بہت یہ مجھے بے مثال دی ہے رحمت اللہ پاک نے. آپ میرے 3 استاد ہیں, تینوں ماشاءاللہ سب سے جو زیادہ جنہوں نے میری تبدیلی لائی ہے میری زندگی میں, میرا ریحانی بیٹا ہے. پھر آپ دونوں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جزا دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
جزاک اللہ آنٹی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے اپریسیشن کا. پرسوں میرے پاس ایک ہماری میرے خیال میں انظار کے پلیٹ فارم پہ ہی ہیں، ایک ہماری بہن ہے میرے خیال میں نیلوفر طارق ان کا نام تھا، انہوں نے مجھے میسج کیا پرسنل پہ اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. میرے لیے بہت وہ موٹیویشن کا باعث بنا کہ وہ کلاس میں تو نہیں آ سکتے لیکن وہ ماشاء اللہ یوٹیوب سے بہت ریگولر انہوں نے بتایا کہ میں لیکچر سن رہی ہوں اور بہت زیادہ ان کو ماشاء اللہ. تو یہ چیز جو ہے اس میں میں اپنے طور پہ سر ریحان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ انظار کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ ہم اس کلاس کو شروع کرنے کے قابل ہوئے. اور الحمدللہ یہ سفر جو ہے آج ہمارا اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ ہم سورہ بقرہ الحمدللہ جس میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ایک بڑی ہی جو سمجھ لیں کہ اختصار کے ساتھ ایک تقریباً کمپلیٹ اس کے اندر ہمیں ایک پورا جو ہے وہ شریعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو الحمدللہ میں آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اتنی لگن اور اتنی محنت کے ساتھ اس کلاس کو جوائن کیا اور اس میں آپ لوگ آتے ہیں اور ہمیں یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے. خاص طور پہ اسی کلاس کی توسط سے میرا الحمدللہ جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ وجود میں آیا. اس پہ الحمدللہ میں نے سورہ فاتحہ سے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا اور یہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کریں. تو آپ میں سے اگر کوئی اور کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز شیئر کر لیں. جی آپ پلیز سسٹر شبانہ مائک اوپن کر لیں. ڈاکٹر ریحان یوسفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صرف اور صرف کیونکہ 10 بجے وہ چلے جائیں گے تو اس میں نے پورشن کو پہلے کر لیا، یہ ویسے اینڈ میں ہونا تھا لیکن ہم لوگ اس وقت اپنی شیئرنگ کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اس وقت اپنی کچھ شیئرنگ کر سکیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا اور سبق جب سنانے کا ٹائم آئے گا تو میں ڈیفینیٹلی آپ سے سنوں گا. جی السلام علیکم. جی میں نے جی جوائن کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ کے حکم سے میری ایک دوست ہے حمیرہ، تو انہوں نے مجھے ادھر جوائن کروایا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ جب کلاسیں لوں گی تو پھر پتہ چلے گا. بہت بہت انہوں نے شکریہ جزاک. کیا تھا آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں. آپ کیونکہ نیو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ تو آپ ہمارے ان کلاسز کو جب آپ ریگولر انشاءاللہ ابھی بھی آپ شروع کریں گے تو آپ بہت ہی جلد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو جب عربک میں پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جی نصرت بہن آپ پلیز ہینڈ ریز کیا. جی آپ جی بات کیجیے گا. جی نصرت سلیم آپ پلیز بات کریں. آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جب سے یہ جوائن کیا ہے آپ نے واقعی بہت اچھا سا ہمیں اس کا قرآن کو سمجھنے کا طریقہ بتا دیا. اور یہ سب سے پہلے میری سسٹر ہیں عظما، انہوں نے مجھے آپ کا یہ جوائن کرا تھا، پھر انہوں نے مجھ سے کہا تو انہوں نے مجھے جوائن کروایا اور ماشاءاللہ سے یہ مجھے بہت اچھا لگا. اور اکثر بیشتر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو یاد کر لوں. میں عمر کے حصے میں ہوں شاید کہ مجھے یاد نہیں ہوتا پورا ہفتہ کوشش کے باوجود، لیکن آپ اس میں میری بہت ہیلپ کر دیتے ہیں جس کی میں آپ کی شکر گزار ہوں. اور پھر میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کو اور میرا کو ان سب کو بھی اتنا میں اس سے امپریس ہوں کہ میں نے اکثر لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ اس میں شرکت کریں وہ، اور کر بھی رہے ہیں لوگ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ واقعی جس طرح سے آپ پڑھا رہے ہیں سب لوگ سنیں اور سمجھیں قرآن کو. ہم نے عمر کا بہت حصہ ضائع کر دیا، کاش آپ ہمیں پہلے مل چکے ہوتے، لیکن بس ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. تو جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے کہ تھوڑی سی کمی اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ بہت عمر گزارنے کے بعد اب اس میں آئے ہیں، لیکن بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کر دے. بس باقی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور الحمدللہ اس زندگی میں چن لیا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہی چیز ہمارے لیے جو ہے جنت میں کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گی. سسٹر سائمہ حامد ہینڈ ریز کیا ہوا آپ نے. جی سر یہ ازما ریویو دینا چاہے گی. اوکے جی بیٹا ازما آپ پلیز بتائیے. السلام علیکم. جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے مجھے اس کا مطلب بھی پتا ہو، اس لیے میں نے یہ کلاس جوائن کی ہوئی ہے. یہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج تھی. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رفت بہن. جزاک اللہ. بڑی خوشی ہوئی بچی کی بات سن کے کہ اس میں اتنا جذبہ ہے، اتنا شوق ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو ایسا کرے، میری یہی دعا ہے. باقی یہ کہ میں نے آپ کی کلاس دوسرے سپارے سے شروع کی تھی اور پہلا سپارہ تو شاید مس ہو گیا، لیٹ جوائن کیا، لیکن یہ ہے کہ عربی بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. وہی ابھی جو جنہوں نے پہلے کہا ہے کہ عمر کا حصہ ضائع کر دیا، تو نہ آپ افسوس نہ کریں، آپ شکر کریں کہ اب بھی ہمیں یہ کام مل گیا ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں. اس پہ افسوس نہ کریں، شکر کریں کہ عمر گزر ہی نہیں گئی اور ہم پڑھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے قرآن. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا قرآن اسی طرح پڑھتے رہیں اور اکٹھے رہیں اور ہمارے ساتھیوں میں برکت پڑے.
ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. سرفراز بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا, پلیز. تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ میں مختصر فیڈ بیک دے دوں کہ ایکچولی مجھے ریحان بھائی نے انہوں نے مجھے کافی دفعہ موٹیویٹ کیا اور آواز کیا تھا. ہلکی آ رہی ہے سرفراز بھائی, تھوڑی سی اگر میں آواز کو تیز کر لیں. آواز نہیں آ رہی. ابھی آواز مائک قریب کر لیں جی, ابھی پہلے سے بہتر ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ میرا انٹینشن انیشیلی میرا نہیں تھا, یہاں مجھ سے کیا میں نے بھی آپ کو مالک ہے اس لیے ہم نے کلاس اسٹارٹ کی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی گھر میں اس طرح ہوتا ہے. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا مجھے ہم یہ اور مسئلہ کی طرح سے کر کے قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہمیں جو نوٹ ہے میں آتے ہیں, اور جب قرآن پڑھتا ہے معلوم مسلمان اسی وقت بنتا ہے جب قرآن کو پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ جو پھر ایک تعصبیت ہوتی ہے یہ پھر ختم کرتا ہے. آپ کتنے دل سے پڑھیں اس کو تو پھر یہ تعصبیت کو ختم کرتا ہے. تو جو ہم بات ہوتی ہے اس کو پھر آپ ہی ماننے کی جی. چلیں سرفراز بھی آپ کی آواز کا ویسے کافی ایشو ہے, لیکن کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو سائم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ریحان بھائی کا. اچھا, میں اس کلاس کے فارمیٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. جس طرح سے سلمان بھائی جو ہے شروع میں ترجمہ پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں اور ساتھ مختصر تفسیر اس کی بتاتے ہیں, تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے, اور اس کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو واٹس ایپ پہ رنگین جو آیات ہیں وہ جب شیئر ہوتی ہیں تو پھر ایک قسم کا نا ہمیں ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ریوائز کرنی ہے, تو اس کو دیکھ کے یاد بھی آ جاتا ہے, اور پھر ہم اس کو دیکھ کے کلاس سے پہلے تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا فارمیٹ ہے اور یہ بہت ہیلپ فل ہے. اور پھر جس طرح سے کلاس میں آپ ترجمے کے بعد سنتے ہیں باری باری, اس سے مزید جو ہے نا پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے, غلطیاں بھی نکلتی ہیں, اور پھر مزید جو ہے الفاظ کے معنی بھی جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح علی بھائی بھی بہت اچھی گرامر کروا رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ تھوڑا تھوڑا گرامر کا ٹچ یہ بھی بہت اچھا ہے. اور پھر سلمان بھائی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کلاس میں جو ہے نا کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, تو اس کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کو مزید ہمت طاقت دے. تو جزاک اللہ خیر. جو بھی لوگ اس کاوش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے, اور بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ تمام کا. میرے خیال میں اور تو کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوا ہوا, اور ریحان بھائی جو ہیں وہ 10 بجے کیونکہ انہوں نے آگے جانا ہوگا, تو ہم پھر اب اپنا اتنے سبق شروع کرتے ہیں. ریحان بھائی آپ پھر جب آپ نے لیو کرنا ہو تو پھر آپ کلاس کو لیو کر دیجیے گا. اگر آپ کوئی اور بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لیو کر لیں. میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی. السلام علیکم. جی شاہین بھائی پلیز. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے یہ شروع کیا پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اور آگے بڑھائے, اور آپ اسی طرح اچھے اچھے کام کرتے رہیں. ویسے بھی قرآن پڑھانے والا تو سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. جی نیر بھائی آپ نے کچھ کہنا چاہ رہے جی نیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سلمان بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی کلاس جا رہی ہے, اور بہت اچھا یہ ہمارا سبق جا رہا ہے, اور بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. اور جس طرح سے بار بار رپیٹ ہوتا ہے کلاس میں, اسے یقیناً اسی وقت ہی بلکہ یاد ہو جاتا ہے سارا سبق. اور اللہ پاک ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق سب کو دے, اور سب کو جزائے خیر دے. اور آپ کو بہت زیادہ نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں آپ کے لیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ریحان بھی آپ نے کچھ اگر جی بہت مجھے خوشی ہوئی ہے سارے فیڈ بیک سن کے, اور میں سمجھتا ہوں اپنے لیے آپ نے بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا بندوبست کر لیا ہے, اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ اپنی عاقبت کے لیے ایک بہت بڑا سامان تیار کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے, آپ کو ہمت دے, صحت دے, اور ان سب کو استقامت دے کے یکسوئی کے ساتھ جس کام کا آغاز کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اس طرح سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, انشاءاللہ اللہ خیر سے بوقت لائے جب ہم قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس کو بھی اسی طرح ختم کریں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اپنے احاطے میں لے لیں. تو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. میں اب اجازت لوں گا کہ میری دوسری کلاس شروع ہو رہی ہے.
मुझे दिल की खुशी हुई है आप सबके फीडबैक सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हम अपना सबक अब शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, माँ जो फी में अस्समावात की आसमानों में, व माँ और जो फी में अर्दी ज़मीन में, व इन और अगर तुब्दू तुम जाहिर करो, माँ जो फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिल में, औ या तुख्फूहु तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम तुम्हारे से हिसाब लिया जाएगा, बिही इसका, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह जो है वो तुमसे इसका हिसाब लेगा। फयगफिरु फिर बख्श देगा, लिमन लिए जो, यशाउ जिसको चाहे, व युअज़्ज़िबु और अजाब देगा, मन जिसको यशाउ वो चाहे, वल्लाहु अल्लाह अला पर कुल्ली हर शैइन चीज कदीर कुदरत रखता है। ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, और ये जो आखिरी रुकू है इसमें अल्लाह ताला ने एक दुआ जो है वो भी साथ शामिल की है। जिस तरीके से कुरान पाक का जब आगाज हुआ था और सूरह फातिहा जो है उसमें उसको अल्लाह ताला ने कुरान के दिबाजे के तौर पे पेश किया, और उसका आप यूँ समझ लें कि कुरान जो है वो बिल्कुल एक दुआ अल्लाह ताला ने नमाज में हर शख्स के लिए लाजिम कर दी। इसी तरह जो सूरह बकरा है, क्योंकि जो इसका आगाज सूरह बकरा का हुआ था और जो आयत थी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें शक नहीं और हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो इस हवाले से वहां पे अल्लाह ताला ने स्टार्ट में ही ये बात मेंशन कर दी थी कि ये एक हदायतनामा जो है मैं अब भेज रहा हूँ, जो कि क़यामत से पहले आखिरी दफ़ा इस दुनिया में आ रहा है, और जिसमें कोई शक मौजूद नहीं है, और उन लोगों के लिए हदायत है जो तकवा रखते हैं, जो अल्लाह ताला से डर रखते हैं। इसी तरह से इसके बिल्कुल इख्तिताम में अल्लाह ताला ने इस पूरे सूरह बकरा में हमने ये देखा कि मुसलमानों को पहले साथ ही मुखातिब करके और कुरैश को मुखातिब करके स्टार्ट लिया गया, और आयत नंबर 40 से लेकर ऑनवर्ड अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को खास तौर पे मुखातिब किया, और उनके सामने एक चार्ज शीट जो है वो पेश की गई, और उनकी तमाम की तमाम तारीख जो है उसको उनके सामने पेश करते हुए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बिल्कुल यूँ समझ लें कि हर लिहाज से एक एक पॉइंट जो है वो लोगों को बताया कि आज अगर बनी इसराइल से अल्लाह ताला अपनी इमामत ले रहे हैं तो उसकी क्या वजह और क्या रीज़न है। उसके बाद बनी इसराइल की तारीख में साथ साथ जब अल्लाह ताला ने किबले को तब्दील करने की बात की, तो साथ ही लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि अब क्योंकि वो लोग मदीना में थे और हम जो है वो मक्के में जाकर हज और उम्रा जो है वो अदा करें। उस वक्त सूरत हाल ये सामने आई कि जो कुफारे मक्का थे उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा एजिटेशन जो है वो सामने आया, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ही उनको जहाद के अहकामात जो हैं वो सादिर फरमाए, और वहां से जब जहाद का मामला हुआ तो फिर उसके बाद कुछ मामलात ऐसे एड्रेस हुए कि जिसमें यकीनन जब जहाद होना था तो लोगों ने शहीद शहादत की वजह से वहीं पर अल्लाह ताला ने फिर उस टॉपिक को डिस्कस किया, और वहां पे जो ज़िमन सवालात थे, जैसे मुख्तलिफ किस्म के उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो देना शुरू किए। फिर वहीं पर अल्लाह ताला ने वहां पे कि जब दूसरी शादी और उसके बाद और मामलात, और फिर जो है वो बीवियों के साथ ताल्लुकात और साथ ही तलाक के मामलात, उन सबको एड्रेस किया गया। और जहाद में जिस तरह से अल्लाह ताला ने इन्फाक का जिक्र स्टार्ट में किया था, तो इख्तिताम में फिर वही जिक्र दोबारा से हुआ, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर फिर सूद को एड्रेस किया और उसका कानून और शरीयत जो है वो बयान की, और साथ ही क्योंकि सूद को तो ममनू करार दे दिया, लेकिन लोगों ने जब कर्ज पर लेन देन करना था तो उस सूरत में हमने पिछले रुकू में देखा कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई और लोगों को बताया कि किस तरीके से अपने मामलात को लिख लेना है। अब इस रुकू के अंदर यहाँ पे अब यूँ समझ लें कि इस पूरी सूरत का इख्तिताम हो रहा है, तो दोबारा से अल्लाह ताला जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि लिल्लाही अल्लाह के लिए है, माँ जो फी में समावात के आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी ज़मीन में है, वइन और अगर तुब्दू तुम जाहिर करो, माँ जो फी अनफुसिकुम तुम्हारे दिल में हो, औ या तुख्फूहु या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम तुम्हारा से हिसाब लेगा भी इससे अल्लाह अल्लाह। यानी कि अब जो खिताब स्टार्ट में शुरू किया गया था कि देखो ये एक किताब आ गई है, ये अल्लाह की किताब जिस पर तुम लोगों ने यकीन रखना है, और उसके बाद अगर तुम लोग जो है वो इस पर अपने दिलों में कोई बुग़्ज़ रखोगे, मिसाल के तौर पे बनी इसराइल को क्योंकि इसमें मुखातिब किया गया, और अब यहाँ पे मुसलमानों की तरफ से यानी कि खास तौर पर बनी इस्माइल की तरफ से इस आयत में, इन आयात में अल्लाह ताला ने कहा कि जो शख्स भी वही रविश इख्तियार करेगा और जिसके दिल में कोई बुग़्ज़ होगा, तो वो शख्स जो है वो यकीनन अल्लाह ताला उसका मुहासबा करेंगे। और 29वें पारे में जैसे अल्लाह ताला ने हमको ये बताया है कि मैंने ज़िंदगी और हयात को इसलिए पैदा किया कि इंसान को अल्लाह ताला ने आज़माना है। इस दुनिया में हमें ख़ास वक़्त के लिए भेजा गया है। अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा भी ज़िंदगी जी लेगा, तो बहुत भी जिएगा तो 100 साल जी लेगा। 100 साल के बाद तो उसने दुनिया से चले ही जाना है, जबकि हम लोग अगर देखें तो 50-60 साल हमारा इस वक़्त एवरेज रेट ऑफ लाइफ़ जो है वो चल रहा है। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जो एक बहुत ही शॉर्ट सा टाइम पीरियड इस दुनिया में दिया है, के लिए भेजा है, वहाँ पे हमने उन
اس اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، جس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور پھر وہ بخش دے گا لمن لیے جو یشاء وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا من جسے یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ پر ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے. آمنا مان لیا رسول بما جو کچھ بھی انزلہ نازل کیا گیا یا اترا الیہ اس کی طرف، من سے رب ہی اس کا رب، والمومنون اور مومن یعنی کہ جو مومن لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے کہ آمن الرسول ایمان لے آئے یا مان لیا رسولوں نے بما جو کچھ انزلہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا الیہ ان کی طرف، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور جو رسولوں کے ساتھ ان کے ساتھی یعنی کہ جو مومن تھے ان لوگوں نے بھی اس کلام کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئے. اس کے ساتھ ہی کلن، اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ایک جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ اصل میں ہم لوگوں کی زبان، ہم لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو ہے وہ قرآن میں شامل کی ہے یا قرآن میں نازل کی ہے، تو یہ جو اب یہاں پہ کمیونیکیشن ہے یہ بھی ہم لوگوں کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلن وہ سب کے سب آمنہ جو ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں نفرقو کہ ہم ان پہ فرق نہیں کرتے، بین درمیان احد ان کسی ایک میں، من سے رسول ہی اس کے رسول، وقالو اور انہوں نے کہا سمینا کہ ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا کہ تو بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری طرف المصیر ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اب یہ جو آیات اصل میں خاص طور پہ بنی اسماعیل کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ فرق کیا تھا بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں، کہ بنی اسرائیل میں جب قرآن نازل ہوا تو اس سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے سے تمام کی تمام اللہ کی کتابیں، تمام کے تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری چارج شیٹ پیش کرنے کے بعد ان کے برعکس بنی اسماعیل جن کے پاس وہ تعلیم کی روایت موجود نہیں تھی، اور ان کی طرف سے ان کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ ان پر ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے جب یہ بتایا گیا کہ جو اس سے پہلے جتنی بھی، جیسے ہم نے بالکل سورہ بقرہ کے اسٹارٹ میں دیکھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اس وقت کہ جو ان پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے پر نازل ہوا تو وہ لوگوں نے ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئے. وہ تمام پیغمبروں پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی مانا، تمام پیغمبروں کو انہوں نے اپنا پیغمبر تصور کیا. اور جو ہم نے تیسرا پارہ پڑھا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو تلک الرسول، یہ جو رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ کو ہم نے اپنے خلیل اللہ کا لقب دیا، اپنے بہترین دوست کا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ کو اپنا ہم نے کلیم اللہ کا لقب دیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بات چیت کی ہے. اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کا درجہ دیا گیا، تمام جہانوں کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو یہ تمام کے تمام جو رسول ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اختتام پہ ہم لوگوں کی طرف سے اس بات کو جاری کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تمام پیغمبر جو اللہ نے جن کو اپنے بہترین شخصیت کے طور پہ اپوائنٹ کیا، اپنے نائب کی صورت میں اس دنیا میں اپنا رسول بنا کے بھیجا، تو وہ سب کے سب ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رب نے ان کو ہمارے لیے بھیجا ہے. اور اس کے برعکس جو مثال بنی اسرائیل کی تھی کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچان لیا تھا جیسے وہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں کیا کہ اپنے بغض کی وجہ سے کہ یہ آخری پیغمبر جو ہیں یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئے. یہ جو کلام جس کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا تھا، جس پیغمبر کا ذکر ہماری کتابوں میں کیا گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں جس طرح سے بتایا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایسے شخصیت آئیں گی کہ جن کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو میرا نام لے کے اس کلام کو، جس کے دل میں اپنا کلام ڈالوں گا یا منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو یہ وہ تمام کی تمام باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر پوری ہو گئیں، تو انہوں نے اپنے سے بغض اور عناد کی وجہ سے ان پہ ایمان نہیں لے کے آئے، جس کے بعد ان کو تنزلی دے کے اب مسلمانوں کو ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین امت قرار دیا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اب وہ ذمہ داری دی جو بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی کہ وہی تمام کے تمام ذمہ داریاں جو ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بنی اسرائیل کو دے دی تھی. اب وہ ذمہ داریاں بنی اسماعیل کے پاس ہیں اور مسلمانوں کے پاس ہیں. یہ پیغام اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کے کندھوں پر ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری میں ہے کہ ہم یہ اللہ کی کتاب، کیونکہ اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. حضور پاک آخری پیغمبر تھے، وہ ہمارے درمیان اپنی سنت، اپنی احادیث کا ذخیرہ اور یہ کتاب چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام رہتی دنیا تک پہنچانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ
ला नहीं युकल्लिफु कि नहीं तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला मगर वुसअहा जिसकी वो इस्तिताअत रखता हो या वुसअत रखता हो या वो गुंजाइश रखता हो, लहा उसी के लिए माँ जो कसबत उसने कमाया, व अलैहा और उसी के लिए मक्तसबत माँ जो अक्तसबत कमाई से है, कसब हलाल जिस तरह से हमारा वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है, कसब कहते हैं कमाई को, माँ जो अक्तसब मक्तसबत जो उसने कमाया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और बात को वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि इंसान के ऊपर मैं कभी भी कोई ऐसा बोझ नहीं डाल देता कि जिसके बाद वो उस बोझ को ना उठा सके। मिसाल के तौर पे इस दुनिया में कुछ लोग तो वो होंगे कि जिनके सामने हो सकता है कि ना उनको किसी पैगंबर की तालीम पहुंची हो, ना अल्लाह की किताब की तालीम पहुंची हो। उन लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हदायत होगी वो जो पैदाइश के वक्त उनकी वजदान में अल्लाह ताला ने डाल दी, सिर्फ वो हदायत उनके पास होगी। तो उनसे जो मुआवजा किया जाएगा वो उनकी उस तमाम हालात और वाक़यात के मुताबिक किया जाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग वो होंगे कि जिन पे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इनके जैसे अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि मुसलमान जो हैं वो उनको जो शरीयत दी गई है, उनको जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो कहीं पर भी अल्लाह ताला ने इस शरीयत का बोझ इंसान के ऊपर इस तरह से नहीं डाल दिया कि वो उस बोझ को उठा ही ना सकता हो। अल्लाह ताला जो है वो इस बात को बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो कोई तकलीफ अल्लाह ऐसी नहीं देता। लेकिन इसमें कुछ उलमा की एक राय और भी है, वो ये है कि जैसे वो ये बात अगर करते हैं कि दुनिया में कुछ लोग जो हैं उनको ऐसी तकलीफ नहीं दी जाती जिसकी वो वुसअत या वो उठा ही नहीं सकते। तो इसके बरक्स आप अगर देखें कि जैसे अभी हमारे सामने आज के दौर में एक कोरोना वायरस जैसा अल्लाह ताला की आजमाइश जो है वो दुनिया के ऊपर आई, और उस वायरस की तकलीफ से जो लोग नहीं लड़ सके वो अल्लाह को प्यारे हो गए, यानी कि यकीनन वो तकलीफ उनकी वुसअत से बढ़ चुकी थी। इसी तरीके से हम आज आप गजा के मुसलमानों पे जो तकलीफ आ रही है, जिस तरह से वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको मारा जा रहा है, या बहुत सारे हम दुनिया में ऐसे मुकाम और ऐसी जगहों को देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जिनमें वाकई कोई अगर सोचे भी तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो एक आजमाइश का एक अलग कानून है। लेकिन यहाँ पर जो तकलीफ जिसकी बात हो रही है तो वो अल्लाह ताला की शरीयत, दीन और क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला जिस वक्त हिसाब किताब करेंगे तो उसको उसके हालात के मुताबिक उसके सामने उसका तमाम जो मीज़ान है वो कायम किया जाएगा। उसके साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि लहा मक्तसबत कि जो शख्स जिस अमल की कोशिश करेगा, यानी कि जो अमाल उसने इकट्ठे किए होंगे, ये दुनिया मैंने आपको जिसने से बताया कि हम एक बहुत ही थोड़े से टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो साल साल गुजरते जा रहे हैं। शायद आप अपने दादा का नाम नहीं जानते होंगे, बल्कि बहुत सारे लोग यकीनन नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम बहुत भी जानते हैं तो अपने दादा या उनके वालिद साहब का नाम शायद जानते हो, लेकिन उससे ऊपर हम लोगों को नहीं पता कि कौन थे। दुनिया से लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए जो हमें तरीका बताया है कि हम अपने अमाल के बदले में रहन है, हमें वही कुछ मिलना है जिसकी हमने खुद कोशिश करनी है, और हर शख्स जो होगा वो कोई किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। और साथ ही अब उसमें यहाँ पे हमारी तरफ से अल्लाह ताला ने ये दुआ जारी की कि रब्बना, ए हमारे रब, ला नहीं तो आखिजना, तू हम हमारा मुआखजा न करना या हमारी पकड़ न करना, इन अगर नसीना तो इन अगर नसीना कि हम भूल जाएं, औ या अख्ताना या हमारे से जो खताएं हो जाएं, रब्बना, ए हमारे रब, वला और ना तहमिल तू हम पर डाल देना, अलैना हम पर, इसरन इसरन बोझ, कमा जैसे हमल तहु तूने डाला, अला पर अल्लजीना वो लोग जो मिन से कबलना हमसे पहले थे। यानी कि अब हम अल्लाह ताला से दुआ क्या कर रहे हैं कि हमसे पहले वो लोग जो बनी इसराइल की सूरत में मौजूद थे, तो उन बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि उन्होंने शरीयत को मजाक बना लिया। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इस शरीयत को इसको अल्लाह ताला ने एक यूं समझें कि उनकी शरीयत को सख्त से सख्त कर लिया। जैसे हमने देखा कि सूरा बकरा, बकरा गाय को कहते हैं, हमने पूरा गाय का वाकया पढ़ा कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा था गाय ज़िबा कर दो, वो गाय ज़िबा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए सख्तियां खुद खड़ी की। तो एक वक्त आया कि वो गाय जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी गाय को कहा कि जो कि वो कभी भी ज़िबा नहीं करना चाहते थे। इसी तरीके से जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम नहीं की थी, जब उन्होंने अपने लिए वो ममनू करार दे दी, तो अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को उनके लिए हराम करार दे दिया। तो अब अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल के लिए की तरफ से ये दुआ, या मुसलमानों की तरफ से ये दुआ कि अल्लाह ताला हम पर वो बोझ मत डालना जो इससे पहले के लोगों पर डाला गया है। रब्बना, ए हमारे रब, वला और ना तुहमिलना, हम वला और ना तुहमिलना हमसे उठाना, माँ जो ला ना ताकता जिसकी हमें ना ताकत हो, लाना हमारे लिए भी इसको, वाफू और तू दरगुजर कर देना, अन्ना हमसे, वगफिर लना और बख्श देना हमें, वरहमना और हम पर रहम करना, अंता तू मौलाना हमारा मौला, हमारा आका, फनसुरना बस मदद कर हमारी, अला पर कौम अल काफिरीन उस काफिर कौम के मुकाबले में, कि उस वक्त जिस वक्त ये आयात नाजिल हो रही थी हमारे मुकाबले में बनी इसराइल जो कि अपने आप को
कुफार के कटहरे में लाकर खड़ा कर चुके थे, उन्होंने इनकार कर दिया था अल्लाह की इस किताब पर और अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लाने से। तो अब हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हमारी जो है वो मदद करना, और हमारा तू आका है, और उन कफार के खिलाफ हमें कभी भी हमारा जवाल ना करना और हमें जो है वो साबुत कदम करना। सूरह बकरा का आगाज से लेकर इख्तिताम तक एक पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने जिस सीक्वेंस के साथ हमने इसको पढ़ा है, मेरी अभी यूट्यूब के ऊपर सूरह फातिहा से मैंने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की है आसान कुरान की, आप में से वो लोग जो स्टार्ट से नहीं शामिल हो सके, तो आप वहां से इन तमाम चीज़ों को अगर सुनना शुरू करेंगे तो आपको ये तमाम बातें, क्योंकि कुरान पाक जो है वो एक नज़म की सूरत में है। कुरान पाक के तमाम रुकू जो हैं वो एक दूसरे के रुकू के साथ यूँ समझ लें कि आयात नज़म के साथ चलती आ रही हैं। और इसमें खास तौर में मौलाना हमीदुद्दीन फरहाई ने यूँ समझे कि ये कारनामा सर अंजाम दिया, और उसके बाद मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने इसके ऊपर तदब्बुर कुरान जैसी शाहकार तफसीर जो है वो लिखकर इस नज़म को जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि इसके बाद हमारे पास सारे के सारे यूँ समझें कि जो सवालात थे उनके हमें जवाबात मिलना शुरू हो गए। हमें कुरान ने पाक जो है वो इस तरह से समझ में आने लगा कि वाकई ये एक जिंदा किताब है। आज भी अल्लाह ताला जो है वो हमसे मुखातिब हैं, और अल्लाह ताला जो है ये पूरी की पूरी तारीख हमें पेश करके एक रसूल की सरगुज़श्त अंजार जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और हमें जो है वो पता चल रहा है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, और हमें बहुत ही आसानी से अगर हम चाहें तो अल्लाह की जन्नत को हासिल कर सकते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे सूरह बकरा में हमसे कहीं कोई खता, कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमारा मुआवजा ना करें, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानियां करें और हमारे इस अमल को कबूल और मंजूर फरमाएं। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। सलमान भाई, मेरे ख्याल में कोई सवाल अभी तक नहीं है, तो एक बात मैं शेयर करूं। जी जी प्लीज। जी, आमतौर पे अमल का तर्जुमा हम करते हैं बोझ, और जो कि बोझ उठाना उसका तर्जुमा, फिर इसरन का भी तर्जुमा वही करते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसरन लफ्ज को एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो एक तर्जुमा बोझ या कहते हैं कि कोई चीज़ दी जाए उसका वजन, लेकिन अगर इसका तर्जुमा हम जिम्मेदारी से करें तो तर्जुमा और बेहतर होता है कि वो जो हमल यानी कि उठाने के लिए जो बोझ दिया वो किस चीज़ का था, वो जिम्मेदारी का था। लफ्ज इसरन असरन जो है, जो इसमें जात बनता है, उसका माना होता है गिरा बांधना, गिरा करना, गांठ लगाना। ये हमारे मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है कि गांठ लगा लो इस बात पर, मतलब एक जिम्मेदारी के साथ एक काम को करना। तो ये जिम्मेदारी के मानों में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो बात बिल्कुल आसान लगती है कि वो बोझ जो जिम्मेदारी का था हमें दिया गया था, और उसके हवाले से दुआ की जा रही है। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर सकती हूँ? जी प्लीज। ये जब यहाँ से हमने पढ़ा ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वुसअहा का मतलब नहीं आ रहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी नफ्स को मगर वुसअहा, इसका क्या मतलब है? ये वुसत से है, वुसत क्या जो है मतलब है? जी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी ऑलराइट। देखिए आपने कहा कि ला नहीं युकल्लिफु, वो तकलीफ देता है, अल्लाह नफ्सन किसी भी नफ्स को, इल्ला मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। अच्छा, अब मैंने आपको इसमें दोनों आरा बता दी हैं कि कुछ आरा तो ये भी हैं कि हमारी दुनिया में मतलब अल्लाह ताला जो है वो कोई भी शख्स जो है वो उसको ऐसी तकलीफ नहीं देते कि जो वो बर्दाश्त ना कर सकता हो। लेकिन मैंने इसकी आपको जो दूसरी आरा आपके सामने पेश की कि ये जो वुसत या ये जो गुंजाइश है, ये अल्लाह ताला की शरीयत और क़यामत के दिन जो मीज़ान कायम होने वाला है, ये उसके हवाले से है कि क़यामत के दिन जब फैसला किया जाएगा कि इस शख्स को दोज़ख में डालना है या जन्नत में डालना है, उसके लिए शर्त ये तो नहीं होगी कि ये मुसलमान है, क्योंकि हम सूरह बकरा में ही पढ़ चुके हैं कि वहां पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों का भी नाम लिया, बनी ईसाइयों का नाम भी लिया, यहूद का नाम भी लिया, साबी का नाम भी लिया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी तमीज़ बांध के कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो कौन से लोग जो होंगे वो जन्नती होंगे। तो जो लोग अल्लाह की किताब पर और अल्लाह के जो असल दीन है उसके ऊपर जब वो ईमान लेकर आएंगे, अब वो जो दीन है वो दीन आज के हालात में अगर आप देखें तो हो सकता है जैसे हमारे सामने चाइनीज कौम है, अब चाइनीज जो है वो उन तक शायद उस तरह से अलहामी मजहब नहीं पहुंचा जिस तरह से यूरोप में यानी कि ईसाइयों तक पहुंच गया, या यहूद तक पहुंचा, या मुसलमानों या अरब और अफ्रीका के लोगों तक जिस तरह से अलहामी मज़ाहिब पहुंच गए, उस तरह से शायद चाइनीज तक वो मजहब नहीं पहुंच सका। अब उन्होंने उसके मुताबिक उनके पास जो हदायत मौजूद है वो कौन सी हदायत मौजूद है, जिसका जिक्र हम सूरह आराफ में पढ़ेंगे, जहां पे अल्लाह ताला ने जो हमें वाकया जिसके बारे में अल्लाह ताला ने पूछा
अहद अलस का वाकया, कि वो जो अहद अलस का वाकया था कि वहां पे अल्लाह ताला ने जब पूछा कि कौन है तुम्हारा रब, तो हम सब ने उस वक्त जवाब दिया था कि अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं। अब उस अहद अलस की जो दावत है वो इंसान के दिल में पैदाइश के साथ मौजूद है। और आप ये देखेंगे कि बेतहाशा लोग, इवन जापान में आप चले जाएं, आप हमारे पास अगर इखलाकियात के हवाले से देखें तो जापानीज इस वक्त इखलाकियात में सबसे एक बेहतरीन कौम के तौर पे इस वक्त सामने मौजूद है। तो यकीनन वो अपनी उसी दावत की वजह से हैं, जो अहद अलस की दावत उनके अंदर मौजूद थी, उसको उन्होंने उजागर किया, उसके ऊपर मेहनत की और वो उस इखलाकियात के इस म्यार पर पहुंच गए। तो अब यहाँ पर जो गुंजाइश और वसअत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला की जो शरीयत है, मिसाल के तौर पर हम पर रोजे फर्ज किए गए, तो रोजे जो है वो जिस फजर से लेके मगरिब के वक्त के अगर रोजे फर्ज किए गए, तो ये ऐसी अल्लाह ताला ने कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी है कि हम ये कहें कि जनाब जो एक इंसान जो है वो कभी भी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। या अगर हम पर नमाज 5 वक्त की फर्ज की गई है, तो ये जो नमाज है खुद कुरान पाक में अगर हमने जो सूरत आयत मेरे ख्याल में 40 से 50 के दरमियान में हमने वहां पे पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने वहां पे कहा कि नमाज मदद मांगो तुम नमाज से और सबर से, और उसके बाद ये बता दिया था कि देखो ये जो मेरे लोग हैं जो आजिज़ी और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल दुश्वार नमाज नहीं है। यानी कि आम लोगों के लिए हो सकता है कि जो नमाज के पाबंद नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हो, लेकिन जो लोग मेरे बंदे हैं, मेरे सच्चे मुसलमान हैं, मेरे वाकई अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये नमाज बहुत आसान हो जाती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी पूरी शरीयत को हम लोगों के लिए, हम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डाला गया कि जो हम ना उठा सकते हो, और क़यामत के दिन हम पर उसके मुताबिक जितना इल्म हमको दिया गया होगा, जितना हमारे तक अल्लाह का दीन पहुंचा होगा, एक शख्स हो सकता है कि वो किसी आलिम के घर में पैदा हुआ हो, उसके पास ज्यादा मौके हों दीन को सीखने के, लेकिन उसके बरक्स एक ऐसा शख्स के जिसने दूर दूर तक उसके घर में अल्लाह के दीन और इल्म की कोई उसको ना मालूम हो, लेकिन उसका कोई एक ऐसा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी बुनियाद पे उसकी जन्नत का फैसला हो जाए। जी थैंक यू, जी समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन? अली भाई आपने कोई और चीज शेयर करनी हो? जी, इस जुमले की स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी अगर इजाजत दे बात करूं, ये जो ला और इला का जब आता है, असल में अरबी में कुरान पाक में बहुत से मकामात पे ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ये असर का उसलूब कहलाता है। जब किसी बात पे सिर्फ या जोर पैदा करना हो ना, कहना हो कि सिर्फ यही है, तो यही उसलूब होता है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कलमे का सिंपल तर्जुमा किया जाए तो हम कहेंगे अल्लाह ही माबूद है। अब ये अल्लाह ही का जो है ना उसलूब है ये कि ला इलाहा पहले सबकी नफी कर दें, फिर इल्लल्लाह अल्लाह को आगे माबूद के तौर पे हम बयान कर दें। तो ये जुमला भी कुछ ऐसी है। अगर इसका सिंपल तर्जुमा करें तो अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वसत के मुताबिक ही तकलीफ देता है, ये कहा जा रहा है। तो इसका उसलूब ये है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह जो है किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी वसत तक या उसके वसत के मुताबिक, ये कहा जा रहा है। जी, अब आप में से जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं, मेरे ख्याल में ये आप सबक प्लीज सुनाना शुरू करें। और सिस्टर हुमैरा ने हैंड रेस किया हुआ है। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाही अल्लाह के लिए ही है, माँ जो फी में अस्समावात आसमानों में, वा और माँ जो फी में अल अर्ज़ जमीन में है, वा और इन अगर तुब्दू तुम सब जाहिर करो, माँ जो फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिलों में है, औ तुख्फुहु तुम या तुम छुपाओ, युहासिबकुम तुमसे हिसाब लेगा बिही अल्लाह, यागफिरु या बख्श दे लिमन जिसे ही दो लफ्ज हैं, ये बे और ही बिही का अल्लाह फयागफिरु या बख्श दे लिमन जिसे यशाउ चाहे, वा ओ युअज़्ज़िबु अजाब दे मन जिसे यशाउ चाहे। यहाँ पे हम जो जिसे वर्ड को तोड़कर पढ़ रहे हैं ना, तो फयागफिरु फा पस या का मतलब है वो, यगफिरु कि पस वो बख्श देगा, लिमन लिए जो, यशाउ या का मतलब वो, आप साथ साथ थर्ड पर्सन जो है उसको भी वर्ड बोलें, यशाउ वो चाहे, वा युअज़्ज़िबु और वो अजाब देगा। अच्छा, वा युअज़्ज़िबु वो अजाब देगा, मन जिसे यशाउ चाहेगा, वो चाहेगा। वल्लाहु और अल्लाह अला पर कुल्ली तमाम शैइन चीज कदीर कादिर है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आमन्ना ईमान लाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया अलैहि उसकी तरफ, मिन रब्बी ही अपने रब की तरफ से, वल मुमिनून और सब मोमिन, कुल्लुन सब, आमन्ना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकातिही और फरिश्तों पर, व कुतुबिही और किताबों पर, व रसूलिही और रसूलों पर, ला नहीं आपको मैं जो चीज पहले भी बताई थी, देखें वह कुतुबी ही, अब इसमें खाली वर्ड क्या है,
ہی کا مطلب ہے اس کی کتابیں، وہ رسول ہی اور اس کے رسول. وَكُتُبِ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول، وَكُتُبِ جی مطلب اور کتابیں اللہ نے بھیجی نا، یعنی کہ جو ہاں لوگ ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر، وہ ملائکت ہی، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں ان پر، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، وہ وہ رسول ہی. رسول ہی اور اس کے رسولوں پر. لا نہیں نفرق فرق کرتے بینہ درمیان احدن کسی ایک کے. اچھا اب اس میں دیکھیں، ہم جب تک ہمارا جو اس وقت پورا کا پورا کورس چل رہا ہے، ہم نے الفاظ کی پہچان کرنی ہے. اب لا نفرق، نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق نہیں، ہم نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ہم رب بنا، اے ہمارے رب. نون کہتے ہیں ہم کو. تو لا نہیں نفرقو، ہم فرق کرتے. بین احدن کسی ایک کے درمیان، من رسول ہی رسولوں میں سے، یعنی اس کے رسولوں میں سے. اس کے رسولوں میں سے، ٹھیک ہے. وقالو اور سب کہتے ہیں سمینا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا ہمیں بخش دے، ربانہ ہے ہمارے. کہتے ہیں یو کو نا، تو کو، یعنی کہ غفرانہ کا کہ تو ہمیں بخش دے. غفرانہ کا ہمارے رب، غفرانہ کا تو ہمیں بخش دے، ربانہ اے ہمارے رب، وعلیکا اور تیری طرف ہی المصیر لوٹ کر جانا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور آگے سرفراز بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں. جی آپ کو آواز سر مائک تھوڑا قریب کیجیے گا پلیز. اچھا آپ کی آواز کا سر ایشو ہے سر. تو آگے نسرین بہن آپ پڑھ لیں. جی مائک اوپن کر لیں، آپ کا مائک بند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ، نہیں ہم فرق رکھتے، نہیں کوئی فرق رکھتا. لا یکلف، لا نہیں یکلف، وہ تکلیف دیتا. اچھا وہ سوری، لا یکلف اللہ، وہ نہیں وہ تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت سے بڑھ کر، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، جو اس نے نیکی کمائی، و علیہا اور اسی کے لیے ہے، مکتسبت جو اس نے برائی کمائی. ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں تواخذنا تم ہمیں نہ پکڑنا، ان اگر نسینا ہم سے بھول ہو جائے، او یا اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمیل ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہو ڈالا تو نے، الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو اس سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تو حملنا تو ہم سے اٹھوا، ما جو لا نہیں طاقت رکھتے، لنا ہم بھی جس کی، واعف عنا پس درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، وانت مولانا اور تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا اور ہماری مدد کر، علل پر قوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. چلیں جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی سسٹر سائمہ آپ پڑھ لیں شروع سے. للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی کے لیے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ ماں اور جو فی الارض زمین میں ہے، وہ ان اور اگر تم ظاہر کرو گے، ماں جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم محاسب حساب کرے، ماشاءاللہ حساب کرے گا، بالکل صحیح ہے، ویری گڈ، بہت اچھا پڑھ رہی ہو. حساب کرے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے، اللہ فیغفرو پھر وہ بخش دے گا، لمن جسے، یشاء وہ چاہے گا، ویعذبو اور وہ عذاب دے گا، من جسے یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ
اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیون بہت قدرت رکھنے والا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، ویری گڈ. اور ازما آپ ماشاءاللہ بس ایسے ہی اس کو کنٹینیو کریں. تو آگے نیکسٹ کون سنائیں گے؟ جی نگیر بھائی آپ پڑھ لیں آگے. جی جی پلیز. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول ایمان لائے رسول بما ساتھ جو انزل نازل کیا الہی اس کی طرف من رب ہی کے رب نے، والمؤمنون اور مومن، کلم تمام، آمنا ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، وملائکتہ کی اور ساتھ اس کے اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں فرق کرتے بینا درمیان احدین کسی ایک سے، من رسولہ اس کے رسولوں میں، وقالو اور کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا غفر بخش دے نہ ہمیں کا تو، غفرانہ کا ہمیں بخش دے تو، ربنا اے رب ہمارے، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی شخص کو، کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، تو اس کے لیے ما کسبت جو کمایا اس نے، وعلیہا اور اوپر اس کے مکتسبت جو اس نے کمایا. ربنا اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا نہ ہمارا مواخذہ کرنا، تؤاخذ پکڑ کرنا یا مواخذہ کرنا نہ ہمارا، ربنا لا تؤاخذنا اے رب ہمارے نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، اور یا اخطانا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحمل اور نہ ڈال علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہوں ڈالا اس کو، الذین اوپر ان لوگوں کے، من سے قبلنا جو سے پہلے تھے، ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا اور نہ ہم پر ڈالنا، مالا جو نہیں طاقت رکھتے لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے، واعف کو اور معاف کر دے، انا ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور معاف کر دے، رحم فرما ہم پر، انت تو ہی مولانا ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، فانصرنا بس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی سگرا بہن آپ پڑھ لیں شروع سے. سلمان بھائی حمدہ آنٹی کو یاد رکھیے گا. اچھا آپ نے یاد کرا دی. ہاں حمدہ آنٹی میرے خیال میں آپ شروع. میں پڑھتی ہوں، میں نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. اچھا میجا آپ کا ہینڈ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا اصل میں، میرے ذہن سے بالکل، میں کیونکہ ہینڈ کو فالو کر رہا ہوتا تو میرے پاس. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ لل آتا ہے کہ تمہارے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ اس سماواتی فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی اور جو کچھ، وما اور جو کچھ زمین میں ہے، فی کا مطلب ہے میں، فی الارضی زمین میں ہے، وان اور اگر تبدو تم سب ظاہر کرو گے، ماں جو فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، اور یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم تو اللہ حساب لگائے گا تم سے بھی کا ہی اس کا، اللہ فیغفروا پھر یا وہ بخش دے گا، یغفروا پھر وہ بخش دے گا، لمن لی کو من جس کو، یشاء وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من جس کو یا جسے، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے. آمنا ایمان لائے، یہ ادب کے لیے ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ایمان لائے، آمنا ایمان لائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیما بھی اس پر جو، بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الہی اس کی طرف، من ربی ہی من سے، ربی ہی
उसके रब की तरफ से, वल मोमिनीन और सब मोमिन भी या ईमान लाने वाले, कुल्लुन सब आमना ईमान लाए, बिल्लाही भी पर अल्लाह पर, व मलाइकाती और ही उसके फरिश्तों व मलाइकाती ही उसके और उसके फरिश्तों, और कुतुबिही किताब की जमा कुतुब, और ही उसकी और उसकी किताबों, और रसूल ही उसके रसूलों ही पर, ला नहीं नुफर्रिकु हम फर्क करते, हम ला नहीं फर्क करते, बैना दरमियान अहदिन किसी एक के, मिन रसूल ही उसके रसूलों में से, में से ही उसके वकालू और वो सब कहते हैं, समिअना सुना हमने, व अताअना और तायत की हमने, गुफराना का तेरी मग़फ़िरत, लफ्ज़ी तर्जुमा तो यही है कि तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, तेरी बख्शिश चाहते हैं। तो गुफराना का लफ्ज़ी जो है वो तो बहुत बख्शिश करने वाला का, तेरी बख्शिश चाहते हैं। रब्बाना ए हमारे रब, की लय का और तेरी का ही तरफ, और तेरी ही तरफ, अल मसीर लौट कर जाना है। ला माशाल्लाह नहीं जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा आंटी। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आयात इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये जन्नत का खजाना जो है इन आयात को कहते हैं, और बहुत इनकी बरक़ात हैं। इन आयात को, ये आमन रसूल से लेकर आखिर तक आप लोगों को ज़रूर इसको याद करना चाहिए, जिनको ज़ुबानी याद नहीं है। जी, मैं और रात को पढ़ती हूँ रोजाना। ये बहुत मतलब खूबसूरत आयात हैं। हाँ जी, तो इसके ये बाद अब ये सूरह अल्लाह ताला ने दो खजाने दिए थे ना, आप ही ने फरमाया था जब सूरह फातिहा शुरू की है। एक सूरह जी फातिहा का नूर था, दो नूर दिए थे, और एक ये आखिरी आयत। ये आयात बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इंसानों की मतलब तरफ से अल्लाह ताला ने ये खजाना जो है, यानी कि असल में ये हम लोगों की तरफ से वो दुआ है। जैसे सूरह फातिहा में भी हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपका ये तरीका बताया है, और यही तरीका यहाँ पे हमारी तरफ से अल्लाह ताला ने हमको रहनुमाई फरमाई है कि मोमिन जो है वो ये तरीका जो है ईमान का रखता है। इसी तरह बहन आप पढ़ लें प्लीज शुरू से, इसके आगे से। जी सर, इससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि जो जी, आमन रसूल हुआ है, इसमें सारे रसूलों की बात हो रही है या सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है? ये सारे रसूलों की बात हो रही है। तमाम जो रसूल हैं अल्लाह ताला के जी फरमाबरदार रसूल हैं, और उनके ऊपर जो भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है वो उसके ऊपर एज इट इज़ ईमान लेकर आए हैं। और यही हमारा ईमान है कि हम तमाम पैगंबरों और तमाम रसूलों को मानते हैं, और हम उनमें जी किसी में भी कोई फ़र्क नहीं करते। सलमान भाई, जी सर, सीगा बस एक हाँ नंबर वाहिद का है, मैं शायद थोड़ा सा मुखालिफ राय रखता हूँ। इसमें से मैंने आपसे कहा ना कि मैंने मतलब क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है आगे पीछे के सियाक़ो सबाक़ से, तो उस हवाले से आप इसको अगर खाली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लेना चाहें तो आप उसपे भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको असल में जो इस वक्त ये मुकाम है ना, कि अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल के हवाले से फ़र्क बताया कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल में फ़र्क क्या था, कि बनी इसराइल में तमाम पैगंबर आ रहे थे पिछले 2500 साल से तकरीबन, और उन्होंने सिर्फ इस वजह से हुज़ूर पाक को रसूल नहीं माना क्योंकि वो बनी इस्माइल में थे। तो अब अल्लाह ताला ने फ़र्क बताया कि बनी इस्माइल जो है, उनको जब हुज़ूर पाक को अल्लाह ताला ने अपने ये पैगंबरी का दर्जा जो है वो अता किया, और उनको ये अल्लाह ताला ने ओहदा दिया, तो उन्होंने उनके ऊपर भी ईमान लाया। और उनके साथ ही जब उन्होंने ये बताया कि इससे पहले जो किताबें थी वो भी अल्लाह की थी, जो रसूल थे वो भी अल्लाह के थे, तो अब इसमें मुख्तलिफ तफासीर हैं। मैं इस पे डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सारी बात जो है वो असल मकसद को समझना चाहिए। चलें, ठीक है, ठीक है, ये आपकी राय है। जी बहरहाल जी औज़ुबिल्लाहि जी मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला नहीं युकल्लिफु, तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला मगर वो साहा उसकी ताकत या वसत के मुताबिक, लाहा उसके लिए है, माँ जो कसबत कमाई उसने, नेकी कोई, वालैया और उस पर उसका वबाल है, माँ मकतसबत जो उसने कोई बुराई कमाई। रब्बाना ए हमारे रब, ला नहीं तो आखिजना हमारा मुआखजा करना, इन अगर नसीना कोई भूल चूक हो जाए हमसे, औ या अख्ताना गलती कर बैठे हम। रब्बाना ए हमारे रब, वाह और ला नहीं तहामिल तो डाल अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा जैसे हमलताऊ डाला तूने उसे, अल्लाह जीना उन पर, मिन कबलिना जो हम मिन से कबीना जो हम पहले थे हमसे। रब्बाना ए हमारे रब, वाह और ला नहीं तो हम मिलना तू उठवा हमसे या तू डाल हम पर, माँ जो ला नहीं ताकत लना हम में बेही उसको उठाने की। वाफू
अन्ना तू दरगुजर कर हमसे, वक्फिर लना और बख्श दे हमें। सर ये आगे जो है ना वो 1 मिनट मुझे वो सीधा, जी सर नहीं वो आ नहीं रहा समझ। वरहमना और रहम कर हम पर, अंता तू ही मौलाना हमारा मौला है, फंसुरना और हमारी मदद फरमा, अला पर कौम पर काफिर जो काफिर है, काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। आमीन। बेटे मैंने जरा ये थोड़ा सा आपसे पूछना है, ये इससे पहले पढ़ा था ना, माँ जो कसबत उसने कमाई, तो ये कसबत है और आगे है अकसबत। कसबत नेकी के लिए आता है और अकसबत बुराई के लिए मायनों में आता है, तो ये बात ठीक है। देखिए तर्जुमा तो मैंने आपसे कहा ना कि बा मुहावरा हम कुछ भी बना लें, लेकिन जो रूट वर्ड है वो दोनों कमाई का ही है। अब कमाई नेकी भी जाती है और कमाई बुराई भी जाती है, तो असल वर्ड जो है आप इसको मक्तसबत इसने कमाया वाला ही, और उसमें और मक्तसबत जो उसने कमाया। अब बात यह है कि मैंने ये पढ़ा था कि कसबत उसने नेकी कमाई, यानी वो नेकी के मायनों में आएगा, मक्तसबत बुराई के मायनों में। जी अली भाई। जी सलमान भाई, मैंने कहा ये आर्टिकल के जो सवाल है इस पे आप रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल, इसमें असल में देखिए तर्जुमे के एतबार से आपकी बात ठीक है, रूट वर्ड सेम है, फर्क है वजन का। ये जो पहला है कसबत, ये मुजर्रद है, मतलब आमतौर पर मुजर्रद से मतलब सिंपल जो एक वजन है, आमतौर पे हम यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई जोर नहीं है, सिंपल बात की गई है। अच्छा, नेकी जो है ना, उसको करने के लिए कोई जोर या कहने के अल्लाह की तरफ से कोई रुझान नहीं पैदा होता, तो वो हो जाती है नेकी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सिंपल वर्ड आया। फिर अला जो है, अला का माना जब भी इस तरह अला आ जाए तो इसका मतलब है उस पर, उस पर। अब अल्लाह के माने मतलब कि अब उसके ऊपर है। अब क्या है वो आगे, जो उसने कमाया। अब ये अक्तसबत बाबे इफ्तिआल से है। इफ्तिआल का जब भी वजन आता है तो इसमें पैदा होता है एहतमाम का पहलू, और इसमें कहते हैं कि थोड़ी मुशक्कत का पहलू आ जाता है। तो ये मुशक्कत का पहलू, यानी कि बुराई ऐसी चीज है जो आपको मुशक्कत वाले काम में है फिर भी वो करते हैं। आसान काम नेकी, अल्लाह की तरफ से नेकी आसान है, मुशक्कत है तो बुराई में है। तो इस लिहाज से उलमा ने इसका आसान तर्जुमा जो मुफस्सरीन ने किया, एक कसबत जो है बेसिकली नेकी की तरफ बता रहा है, अक्तसबत जो है बुराई की तरफ बता रहा है। ये एक इजाफी तौर पर उन्होंने डेफिनेशन दे दी है। रूट वर्ड के हिसाब से दोनों के तर्जुमा बताए कमाया। थोड़ा सा पॉइंट के हवाले से आपको ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि बुराई जो है वो मतलब मुश्किल है और नेकी जो है वो आसान है। जैसा कि एक मिनट, जैसा कि आम जिंदगी में तो ये उलट है कि नेकी जो है लोगों के लिए बाज़ औक़ात वो मतलब बुराई आसान होती है और वो नेकी जो है वो एहतमाम करना पड़ता है। सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह की तरफ से रुझान नहीं है। इंसान अगर अपने आप को देखे तो नेकी पे आप देखें, बुराई के ऊपर जब मिसाल एक चोर चोरी करता है, क्या चोरी करना आसान काम है? कितनी मुशक्कत का काम है ना। जबकि किसी को आप कोई खाना खिला दो कितना आसान है। इस लिहाज से आप देखें नेकी आसान है, हमने उसको मुश्किल बना दिया। जैसा मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है कि जो उसने नेकी कमाई और जो उसने बदी कमाई। जी, साथ में अला को अगर ऐड कर दें, उसके लिए है जो उसने कमाया और उस पर है जो उसने कमाया। अब के लिए है क्या मतलब क्या हो गया? अच्छी कमाई का माना ले लिया। अला के माने जब आया थे उस पर है, यानी कि उसके ऊपर अजाब जो आएगा वो अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा, वो उसके बुराई की वजह से आएगा जो उसने किया है। वबाल या जिम्मा उसके जिम्मे है या उसके वबाल उस पर है, उस पर है जी, उस पर। जी ऑल राइट। तो हमारा टाइम जो है अभी सबक जो है हमने कितनी दफा पढ़ लिया? तकरीबन 3 दफा हो गया। अच्छा जी, और कोई रह गया है इस वक्त या सबने सुना दिया? अच्छा, लास्ट क्लास में शायद आप लोगों को पता भी ना चला हो, मैंने ज्वाइन किया था। आप मेरी आवाज सुन रही है तो सुना दे सबक। शबाना, अगर आप मेरी आवाज सुन रही है तो सबक सुना दे अनम्यूट करके। हमारे पास टाइम सिर्फ 7 मिनट है और अली भाई ने भी आज 5-7 मिनट जो है वो लेने हैं, थोड़े से एंड में कुछ चीज डिस्कस करनी थी। तो ये मैसेज आया है, जरा देखिएगा प्लीज। नहीं, सबक पहले है, अल्लाह करे आसानी हो। जी सही, शबाना का नाम लेने वो फर्स्ट टाइम आ जाएंगे, समझ ना आ रही हो उन्हें सबक सुनाने की, याद तो किया था उन्होंने। अच्छा चलें जी, आपने शुरू में जी बिल्कुल सुनाने की कोशिश भी की थी, तो उस वक्त हमने अभी अपना फॉर्मेट हमारा शुरू नहीं हुआ था। जी सिस्टर शबाना, आप अगर अवेलेबल हैं और आप सुनाना चाहती हैं तो आप पहली आयत जो है वो सुना दें प्लीज। और ये मैम अजीज फातिमा का भी हैंड रेज हुआ है। सर मैंने तो शुरू से रेज किया हुआ है हैंड। सॉरी मैंने गौर नहीं कर सका, माजरत, आप प्लीज शुरू कीजिए। कोई बात नहीं। लीला जी, मैं सुनाऊं सर? आप इसके बाद मैम अजीज फातिमा सुना दें, उसके बाद मैं आपसे सुनता हूँ। आयत हम पूरी कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़िएगा क्योंकि टाइम हमारे पास।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में है, व इन तुब्दू अगर वो इसको जाहिर करें, मा फी अनफुसिकुम जो उनके दिलों में है, औ तुख्फूहु या उसको छुपाएं या मख्फी रखें, युहासिबुकुम वो हिसाब लेगा, बिही इसका, अल्लाहु अल्लाह, फयगफिरु बस वो बख्श देगा, मैं यशाऊ जिसको फयगफिरु बस वो बख्श देगा, लिमन यशाऊ जिसको चाहेगा, व युअज़िबु और वो अजाब देगा, मैं यशाऊ जिसको चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह पर कुल्ली तमाम शैइन अशिया कदीर कादिर है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अमन रसूलु ईमान लाए रसूल, बिमा उनजिला जो नाजिल किया गया, अलैहि उस पर, मिर रब्बी ही उसके रब की तरफ से, वल मोमिनूना और मोमिन, कुल्लुन तमाम, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके मलाइका पर या उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, ला नुफर्रिकु नहीं हम फर्क करते बैना अहादिन किसी एक में, मिर रुसुलिही उसके रसूलों में से, वकालू और कहा, समीना हमने सुना, व अताना और हमने अतात की, गुफराना का हमें बख्श दे, रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। आगे पढ़ूं? आगे आप सिस्टर शबाना आप पढ़ें। और एक और मेरे पास मैसेज आया है सिस्टर फरीदा का, उन्होंने हैंड रेज नहीं किया हुआ, लेकिन कह रही मैंने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं एनीवे आप दोनों से सुनता हूँ। जी प्लीज पढ़िएगा। मेरा भी नहीं हैंड युगल तकलीफ और देता आपने अल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ा था, सिस्टर अजीज फातिमा ने बहुत अच्छा पढ़ा था, वेरी गुड माशाल्लाह। जी थैंक यू प्लीज सर, पढ़िए। ला नहीं युकल्लिफु तकलीफ देता अल्लाह अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत से ज्यादा, लाहा और लाहा वो मा कासाबात जो उसने कमाई, नेकी, वहलहा इस पर मा कासाबात जो उसने कमाई बुराई, रब्बाना है हमारे रब, ला ना तो आखिजना हमारा मुआखजा करना, इन नसीना अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए, औ अख्ताना या हमसे कोई खता हो जाए, रब्बाना है हमारे रब, वा और लाना तामिल हम पर डाल बोझ, अलैना ऊपर हमारे इस तरह बोझ, कामा जैसा कि हमल कहू ने डाला, अलल्लाजीना उन लोगों पर, बिन कबले हमसे पहले, रब्बाना है हमारे रब, वा और लाना तो हम मिलना तू बोझ डाल, माँ जो लाना ताकत है, लाना वही हमें वाफू दर गुजर कर, अन्ना हमसे, वक्फिर लना हमें बख्श दे, वरहमना हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना फंसुरना बेशक तू हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तो हमारी मदद फरमा कौम के काफिर कौम के मुकाबले में। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा है, जबरदस्त। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, इसरन का क्या मतलब है? तो इसरन बोझ को कहते हैं। इसरन का मतलब है बोझ, यानी कि अल्लाह ताला से हम दुआ जब करते हैं कि रब्बना ए हमारा, वला और नहीं तहमिल, तहमिल का मतलब होता है बोझ, कि तू डाल अलैना हम पर, इसरन बोझ, कमा जैसे हमलता हूँ तूने बोझ डाला, अलल लजीना उन लोगों पर, मीन से कबले ना जो इससे पहले थे। यहाँ एक जी चीज नहीं मैं जी मैं यहाँ जी एक चीज करना चाहूंगी कि मतलब जो प्रोनाउंसिएशन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें, क्योंकि उससे मतलब में फर्क पड़ जाता है। अब ये इसमें बहन ने ला ना जहाँ जहाँ आया लना, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा अच्छा अजीब, मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज ऐड अप करूंगा, क्योंकि हमारा इस वक्त फोकस जो होता है, मुझे भी इस चीज का अंदाजा है, इवन मेरी अपनी तजवीज इतनी अच्छी नहीं है, और मैं क्योंकि हम लोग इस वक्त हमारा जो फॉर्मेट है या फोकस है वो ज्यादातर मीनिंग्स की तरफ है। वैसे तो बीच में हमारी कोशिश यही है कि हम इस कुरान पाक को जितना बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ सकते हो, इस वजह से बीच में बाजू बात रोकता नहीं हूँ, या कोई चीज सामने भी आ जाती है तो मैं उसको थोड़ा सा जाने भी देता हूँ, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने तलफ़ुज़ को और तजवीज़ को बेहतर करने की। क्योंकि मैंने जज़ाकल्लाह। नहीं जी बात की, क्योंकि फिर बुरा भी लगता है और समझ भी नहीं आती, पढ़ने में टूट जाता है। तो लेकिन वो जरा मैंने कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर ये देखा था, तो वो फिर ला ना ना हमारे लिए वो हो जाता है, लफ्ज का मतलब लना का मतलब जो है हमारे लिए, मतलब तो ये ये मुझे बताइए, अभी सिस्टर फरीदा मौजूद है? पानी में फर्क पड़ता है। यस उन्होंने यस मैं आपने मैंने मैसेज हैंड किया? रेज जी शुरू से आप मैंने थोड़ा जी सुनाइए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि अल्लाह ही का है, माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो कुछ फिल अर्जी जमीन में है, व इन और अगर तुबदू जाहिर करो तुम माँ जो फी अनफुसिकुम फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिल के अंदर है, और तुखफूहु या तुम छुपाओ उसे, युहासिबकुम हिसाब लेगा तुमसे, बिहिल्लाहि उसका अल्लाह, फा पस यगफिरु या मींस वो,
फयगफिरु बस वो बख्श देगा लिमन जिसे यशाउ वो चाहे, वयुअज़्ज़िबु और वो सजा देगा मन जिसे यशाउ वो चाहे, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पर है कुल्ली सब शैइन सब चीज़ों पर कदीर कादर। आमन रसूलु ईमान लाए रसूलु रसूल पर बिमा इसके साथ उनजिला जो नाजिल हुई इलैहा उसकी तरफ मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, मिन रब्बिही मींस उसके रब की तरफ से, वल मुमिनून और जो ईमान जो मोमिन हुए, कुल्लुन ये सब आमना ईमान रखते हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, व मलाइकातिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, ला नहीं नु मींस हम, नुफर्रिकु हम फर्क करते, बैना दरमियान, आहदिन किसी भी एक के, मिन रसूलिही उसके रसूलों में से किसी के दरमियान हम फर्क नहीं करते, वकालू और कहा उन्होंने, समय ना हमने सुना, ना मैंने हम, समय ना सुना, व अताना और हमने अतात की, गुफराना का मतलब है तू, गुफराना का तू बख्श दे हमें, रब्बाना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर व इलैका और तेरी ही तरफ, का मैंने तेरी ही तरफ, मसीर लौट कर जाना है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। उमर क्यानी हैंड रेस किया हुआ है जी, आप शुक्रिया यहाँ से आगे जज़ाकल्लाह जी। माइक ओपन कर लें उमर क्यानी, आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये जो रिएक्शन का ऐसे बटन दबाते हैं ऊपर आ जाता है रेज हैंड, तो इट मींस के रेज हो गया हैंड? जी जी ऐसे ही है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा आता ही नहीं है नहीं, ऊपर। आपका बिल्कुल हैंड रेज हो गया। आप इसको बाजुकात साइड पे, अगर आप स्क्रीन को ऐसे फिंगर से साइड पे करें ना, जहाँ पे लिस्ट आती है पार्टिसिपेंट्स की, तो वहाँ पे फिर आपका साथ हैंड रेज हुआ हुआ शो भी हो रहा होता है। अच्छा वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आया नहीं हुआ था ऊपर, जी आपका इसलिए नहीं मैंने हैंड रेज हुआ नहीं आ रहा था। जी जी उमर क्यानी प्लीज पढ़िएगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाह नहीं तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन किसी नफ्स को इल्ला मगर उस कदर वुसअहा जिसकी गुंजाइश है, लहा उसको मिलता है, माँ का सबत जो कुछ उसने कमाया, वह अलैहा और उसको मिलेगा लाम का मतलब होता है मक्तसबत लहा, लाम का मतलब होता है लिए, लहा उसके लिए, माँ जो कसबत जो उसने कमाया, वह जो अलैया उसने और उस पर कमाया जी मक्तसबत जो उसने कमाया, जो या उसने कमाया। उसने बदी की, या रूट वर्ड दोनों का सेम है जी प्लीज। रब्बाना रब्बाना ए हमारे रब ला नहीं वाखिजना हमें पकड़ना, इन अगर हम नसीना भूल जाएं, और या अख्ताना हमसे भूल हो जाए, रब्बाना ए हमारे रब वाला और ना तहमिल रखना अलैना हम पर, इस तरह बोझ कमा जैसा कि हमल तूने रखा अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन कबलिना जो हमसे पहले थे, जो पहले अगले लोगों पर, रब्बाना ए रब वाला और ना तहमिलना उठवा हम पर, माला जो हम ताकत हम नहीं वो बोझ जो नहीं रखते, लाना हमको जो नहीं ताकत रखते हम, वहाँ जो भी ला नहीं ताकता ताकत लना ताकत हमारे लिए रखते लाना हम हमारे बिही जिसकी वफ़ु और दरअना और हमें दरगुजर कर दे, वफ़िर लाना और हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम फरमा, अंता तू ही है मौलाना हमारा रब, व उनसरना और हमारी मदद फरमा, अला पर कौमुल काफिरीन काफिर कौम पर। चलिए माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आप सब लोगों ने माशाल्लाह आज बहुत अच्छी काविश की है। अली भाई ओवर टू यू, आपने आज कुछ चीज़ों को शेयर अच्छा, करना मेरा था एक प्लीज। सवाल है, जी छोटा प्लीज सा एक सवाल है। जी ये प्लीज। लहा माँ कसबत, इसमें लहा का हम तर्जमा करते हैं कि उसी के लिए है, तो कुरान पाक में ज़्यादातर जब आया है मतलब मुज़क्कर के लिए भी मोनस के लिए भी, तो मुज़क्कर का सीगा ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया, तो ये इसमें लहा में ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लहा जो है ये मोनस का है, यानी ये चीज़ में मुझे पूछनी है। अली भाई जी बता अली दें। भाई इसका जवाब आप दे दीजिए प्लीज। साइम भाई आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। इसमें मैंने कुछ निशान लगाए, नजर आ रहे हैं? हाँ जी जी सर नजर आ रहा है। ये जो हाँ है ना, मोनस के लिए आता है, नफ्स असल में मोनस है। अच्छा अच्छा ये सही नफ्स की है, बात हो रही है सही कि किसी नफ्स पर ये मोह नहीं डालते, उसके लिए है, यानी कि उस नफ्स के लिए है जो उस नफ्स ने कमाया। ये ता भी मोनस है और ये ता भी मोनस है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसा अच्छा इसमें एक और चीज़, जिस तरह सलमान भाई ने बताया और जिस तरह आपने बताया, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, तो मुझे कुछ इस तरह से मतलब समझ में आ रहा है कि उसी के लिए है जो
कसबत उसने कमाया, वह अलैहा और उसी पर है, मा मक्तसबत यानी कि अब वो क्या कमाता है, नेकी कमाता है या बुराई कमाता है। यानी ये दूसरे वाला मक्तसबत जो है, इसमें लफ्जी तर्जमा करें तो ये तो कमाई ही आएगा, लेकिन बा मुहावरा ऐसा लग रहा है कि भाई उसी पर है कि अब वो नेकी कमाता है या बुराई कमाता है। तो दूसरे वाले मक्तसबत में लग रहा है जैसे ये दोनों मानी है, क्या ऐसा ही है? बेसिक बेसिक माने तो दोनों की कमाई है, लेकिन ला के साथ जब आ गया तो लहा उसके लिए है जो उसने कमाया, और उस पर है जो उसने कमाया। और जब पर की बात आ गई तो महसूस ये होता है कि ये ऐसी चीज है, मैंने जैसे कहा ना, अक्तसबत बाब इफ्तियाल से आने की वजह से एक मुशक्कत वाला काम है जो इंसान अपने सर ले लेता है। अल्लाह ताला यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर रहे हैं कि कोई गुनाह करता है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, उसको अजाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसकी अपनी कमाई है। तो ये बताया जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा मैं और शेयर करना चाहूंगा। अब देखें यहाँ पे जो 2 दफा कमाई आ रहा है, एक देखें कमाई हमारी वो है लहा मक्तसबत, कि जो कमाया, यानी कि हमने दुनिया में जो कुछ भी कमाया, उसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, वो अलहिया, और उसके लिए है मक्तसबत, यानी कि क़यामत के दिन जो उसने कमाया होगा वही कमाई उसको वहां पर दी जाएगी। तो ऐसे भी मैं मतलब अली भाई अगर आप इसमें देख लें कि कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो रही हो, तो हम इस एंगल में भी इसको देख सकते हैं। अजीत, देखने को बाकी बहुत सारी बातें, लेकिन इसका सिंपल जैसे आपने शुरू में कहा, लहा मा कसबत उसके लिए है जो उसने कमाया, वह अलैहा मक्तसबत और उस पर है। जब पर का अला का सीगा आता है ना, तो यानी कि उस पर, यानी कि अब जिम्मेदारी उस पर आ गई, तो ये दिया जा रहा है। दोनों माने तीनों माने ठीक है, बेसिक यही है, नेकी कमाई तो उसकी है, बुराई कमाई तो उसकी है। इसमें ब्रैकेट में कहीं पे इन्होंने नेकी लिखा है, कहीं पे बुराई, तो ये लिखना तो फिर ठीक नहीं हुआ ना। अल्लाह जब आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है खिलाफ, जैसे अल कौम में काफिरीन, काफिर कौम के खिलाफ। तो ये अल्लाह जो आया ना, इससे पता लगता है कि उसने बुराई उसी की जिम्मा है। अल्लाह मक्तसबत। जी माशाल्लाह, आपने आसान कर दिया, इतनी देर से कोशिश करो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अली भाई आपने जो शेयर करना तो प्लीज शेयरिंग मैं करें। माजरत जैसे चाहूंगा। जी सॉरी, प्लीज प्लीज। जैसे हाँ जी, जैसे हम कहते हैं ना मीठा हप हप और कड़वा तू तू, तो ये जो पहला है ये हमें इनाम मिल रहा है, और दूसरा जो वो हम पर डाल दिया गया है, वो डाला जाएगा, यानी जो आपने बुरा किया वो आपको जरूर उसका गुनाह मिलेगा। तो ये उसके लिए तो हम राजी हैं, जो हमें नेकी का इनाम मिल रहा है, लेकिन वो हम लेना नहीं चाह रहे और हम पर वो डाला जाएगा। जी अच्छा, एक और अली भाई बताइए, आमन रसूल जो आप बता रहे थे, मतलब यहाँ कोई ग्रामेटिकली है कि रसूल नहीं कहा गया, या क्या है ये? हाँ, असल में सलमान भाई की एक राय है, मैं उनकी राय की कदर करता हूँ। मेरी नज़र में ये सीगा वाहिद का है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है अल्लाह ताला। और दर जी। हकीकत ये जो बनी इसराइल है उसको जवाब दिया जाए कि रसूल वो है जिनको तुम नहीं मानते हो, इस किताब को तुम नहीं मानते हो। दर हकीकत ये रसूल वो है जो ईमान लाया, जो उस पर नाजिल किया गया, और इसके साथ जो मोमिनीन जिनके सहाबा इकराम थे, ये वो हैं जिन्होंने जो ईमान लाए इन चीज़ों पर, जो आगे तफसील आ गई। मतलब मेरी राय ये है, ये कंट्रास्ट में जवाब है पूरे बनी इसराइल को। जज़ाकल्लाह। तो अली भाई इसमें एक और भी तो चीज है, इसमें आमन रसूल है, अर रसूल, इसका मतलब दी रसूल हुआ ना। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। सल्लल्लाहु जी जी, लग ये अर अल अल अर रसूल की वजह से दी रसूल। जी जी। और जैसे कि मेरे ख्याल में आमना जो है वो वाहिद है ना, वो ईमान लाया आमना, तो एक रसूल की बात हो रही है, और नीचे आ रहा है कुल्लुन आमना, तो सब ज्यादा हो गया है। तो आमना को जब हम मेरे ख्याल में मतलब लेंगे तो ईमान लाए हो जाएगा। जी, जब कुल आ जाए ना तो कुल के बाद वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में टाइम बहुत हो गया आप लोगों के लिए, आप जो इजी हैं वो जाना चाहते हैं चले जाएं, सलमान भाई का टाइम ओवर हो गया। नहीं अली भाई, आप जो शेयर करना चाह रहे थे कर लें, अच्छा। जो बैठना चाहेंगे डेफिनेटली वो तो जी जी बैठेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसी है, जो जाना चाहते हैं बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, जा सकते हैं। असल में पिछली क्लास में मैं शामिल था और मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मेरे ख्याल में मेरी बहन शाहीन, उन्होंने कुछ ग्रामेटिकली कोई एक चीज़ बताई थी, तो मुझे लगा कि इसको मजीद खोलना चाहिए। तो शायद आप लोगों को इल्म भी नहीं होगा, मैं आया था और 2-3 चीज़ें मैंने नोट भी की, लेकिन शेयर नहीं कर सका। और जैसा कि मैंने बताया मैं कराची में नहीं था, उस हवाले से मैंने एक चीज़ बनाई थी जो कि थोड़ी सी डिटेल है, और डिटेल में ज़ाहिर वक्त लगता है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं बेशक चले जाएं, आप लोग इजाज़त देंगे तो मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं करते शेयर। जी शेयर करें सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बात हमारी चली थी वो आयत, अगर हम याद करें कि तदयन तदयन तुम ठीक है, लफ्ज आया था
जिसमें हमारी बहन ने कहा था ये अलिफ इजाफी जो आया है दर हकीकत ये आपस में बाहम मिलने के लिए आया है, ठीक है। ये दो वजन है, एक वजन में ऐसे ही है कि एक अलिफ का इजाफा आपस में एक दूसरे के साथ मामलात बताता है। तो पहले मैं मुश्किल तरीका बताऊंगा क्योंकि इसमें जरूरी है कि हम ग्रामर को समझें। माजरत के साथ मैं ग्रामर से अवॉइड करता हूँ। आज भी साइम भाई ने इल्जाम लगाया कि मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ग्रामर से बचूं, आसान तरीके पे आऊँ। तो मैं उसकी जरा वजाहत पहले मुश्किल तरीके से देना चाहूंगा। अगर आप गौर करें तो थोड़ी सी तफसील मैंने लिखी है। फेल का मादा अपना माना रखता है, कोई भी लफ्ज है ना उसका अपना एक माना जरूर होता है, लेकिन वो किसी दरवाजे से गुजरता है, मतलब किसी शक्ल से गुजरता है, तो इसमें खास मफहूम पैदा हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा नजला, नाजिल हुआ। जैसे मैं कहूंगा अनजला, नाजिल किया। अब ये हुआ से किया में कन्वर्ट कर देगा, असल में होना ही हुआ काम जो है ना, नाजिल ही हुआ, लेकिन नाजिल हुआ और नाजिल किया का फर्क वजन की वजह से आया। अच्छा, जिस बाब से वो फेल गुजरता है यानी कि जिस रास्ते से वो निकलता है, फिर उसके मुताबिक उसका तर्जुमा किया जाता है। जैसे फेइलुन काम को कहते हैं, और अगर मैं कहूँ ये काम दायरे किया जाता है, फेल आमतौर पे काम है, काम किया जाता है। अब इसको किसी दरवाजे से गुजारे, अरबी में बाब कहते हैं, किसी वजन या किसी दरवाजे से गुजारे, तो ये किया जाना इसके मुताबिक होगा, यानी कि उस बाब के मुताबिक होगा। जैसे इस गर्दान में जो नीचे मैं पेश कर रहा हूँ, फा आइन लाम मादे को हम लेते हैं क्योंकि एक बुनियादी बाब है, उसके तहत हम इसको देखते हैं इसके क्या माना निकलते हैं। फा आइन लाम को अगर हम देखें, अब इसका तर्जुमा मैंने नहीं लिखा, आप लोग आसानी से तर्जुमा कर लेंगे। ये सुर्ख रंग में जितने भी नजर आ रही है असल लफ्ज है, मतलब जो मादा है, बाकी इजाफा है सिवाय इस अलिफ के। ये लाल काला नहीं हो सका मुझसे, ये भी हरफी है। तो यहाँ पे देखिए अपनी असल हालत में है, ये वाहिद के लिए है, मुजक्कर के लिए और गायब के लिए। क्या तर्जुमा करेंगे? तर्जुमा है किया। अब किसने किया? उस एक मर्द ने किया, यही तर्जुमा होगा। जी उस एक मर्द ने किया। और दो के लिए क्या होगा? फाला, थोड़ा सा खींचेंगे तो हम कहेंगे उन दो मर्दों ने किया, मुजक्कर की बात हो रही है। फालू, उन सब मर्दों ने किया, जमा की बात हो गई। अब मैं दो नॉर्मली अलामत पकड़ता हूँ कि वाव अलिफ का इजाफा जमा की अलामत है। जैसे आज हमने ता साकिन पढ़ा ना, मोनस की अलामत है, देखें। तो अब यहाँ दूसरे लाइन में हम देखें फालत, सेम वर्ड है, एक ता साकिन का इजाफा हो गया। अब हम इसका तर्जुमा मुजक्कर में नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे? उस एक औरत ने किया। इसी तरह दो के लिए फालता, उन दो औरतों ने किया, और जमा के लिए फालना, उन सब औरतों ने किया। फिर अब तीन स्टेजेस है ना, एक होता है प्रेजेंट होता है, मतलब जिससे बात की जा रही है, एक होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, एक वो जो बात कर रहा है। तो गायब उसको कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, जिससे बराह रास्त बात नहीं की जा रही। हाजिर वो होता है जिससे बात की जा रही है बराह रास्त। अब हम आते हैं हाजिर की तरफ। अब तर्जुमे में थोड़ी सी तब्दीली क्या आएगी? तूने, आपने, तुम सब ने, इस तरह तर्जुमा करेंगे। तो हम क्या करेंगे? तुम एक मुजक्कर ने किया, यानी कि तूने किया। तुम दो ने किया, तुम सब ने किया। मोनस के लिए एक फर्क आ जाता है, अब जबर की जगह जेर आ जाएगा, फालती। तुमने किया मोनस के लिए, तुम दो ने किया, ये सेम है। तो फालतुन्ना, तुम सब ने किया, औरतों ने। अब जब मुतकल्लिम जो बात कर रहा है वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? फालतू, मैंने किया। फालना, हम दो ने किया। फालना, हम सब ने किया। अब देखें सूरह अल बकरा में, सूरह अल फातिहा में पढ़ते हैं ना, अनअमता, तूने इनाम किया। अगर हम गलती से कहते हैं अनम तू, तो मैंने इनाम हो जाएगा। जेर के साथ बोलेंगे तो मोनस की तरफ हो जाएगा, तू मोनस की तरफ। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये था एक बाब सिंपल। अब जो हमने कल उस दिन जो मुश्किल आ रही थी उसकी तरफ चलते हैं। फाइल नाम को इसी मादे से गुजारते हैं। अब वजन तब्दील कर दिया हमने। अब वजन है तफाउल, एक ता और एक अलिफ का इजाफा हो गया। फाइल नाम अपनी जगह मौजूद है। अब जो भी शक्लें आएंगी उसमें एक ता और एक अलिफ का मजीद इजाफा हो जाएगा। इस वजन से जब हम गुजारते हैं तो इस वजन का, इस बाब का मफहूम क्या बनता है? बाहम, आपस में मिलजुल कर, ऐसे जितने भी अल्फाज मजीद हो सकते हैं। तो फाइन लाम को उसी तरह हम गुजारेंगे, सिंपल तर्जुमा करेंगे। फाइला का मतलब होता है किया। अब बाहम और आपस में मिलाकर मजीद हम तर्जुमा करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर जरूरी ये सारे सीगे आए, कहीं पर तर्जुमा मुश्किल भी लगेगा आपको। जैसे अब ये वाहिद है, उन दो ने, उसने मिलकर किया, सही है, ये तर्जुमा हो रहा है। उसने आप बाहम किया, दो के लिए आया, उन दो ने बाहम किया। जमा के लिए उन सब ने बाहम किया। मोनस के लिए ऐसी है क्यों? उसने बाहम किया। जमा के लिए आएगा उन दो ने बाहम किया या मिलजुल कर किया, उन सब ने मिलजुल कर किया। अच्छा, इसी तरह तुमने बाहम किया, तुम दो ने बाहम किया, मिलजुल कर किया, तुम सब ने मिलजुल कर किया। अच्छा, माजी के सीगे तो किया तर्जुमा। अगर मुजारे के होते तो क्या होता? करते हो, करोगे। इसी तरह मोनस में आ जाएगा तो थोड़ा सा फर्क ताज़ेती का आ जाएगा और ये तुन्ना का आ जाएगा, तर्जुमा वही है। हाजिर में आ जाएंगे, मुतकल्लिम में आ जाएंगे जो बात करने वाला है। तफाअलतु जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे मैंने बाहम किया।
तफ़अलना, तो हम सब ने बाहम किया, इसी तरह हम सब ने बाहम किया। ये 2 के लिए, हम सब के लिए। अच्छा, अब इसी वज़न पे, अब ये जो वज़न हमने पढ़ा, तो इस वज़न पे अब उस मादे को लाते हैं जिसको हमने पिछले सबक में पढ़ा, दाल या नून, जिसके हम तर्जुमा अगर कर लें लेन-देन। वैसे तो ये देन ही है, उर्दू में बोलते हैं ना, ये लेन-देन, कर्ज। लेन-देन कर लें और इस बाब को इसी बाब से गुजारे, इस मादे को इसी बाब से गुजारे, तो तर्जुमा बनेगा बाहम लेन-देन। दाल या नून को हम रखा, फाइन लाम की जगह हम दाल या नून रखते चले जाए, तो क्या तर्जुमा होगा? तो उसने बाहम लेन देन किया, उन दो ने बाहम लेन देन किया, उन सब ने बाहम लेन देन किया। मुअन्नस में भी ऐसे ही होगा। मुज़क्कर में आ जाए, तुमने बाहम लेन देन किया, तुम दो ने बाहम या मिलजुल कर लेन देन किया, तुम सब ने बाहम लेन देन किया। फिर इसी तरह मुअन्नस में, इसी तरह मुतकल्लिम में है तदायंतु, तो मतलब तुम सब ने मैंने लेन देन किया, हम दो ने लेन देन किया, हम सब ने लेन देन किया। मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ, यकीनन सीगे समझ गए। हमारा टारगेट सीगा कौन सा है? क्या लफ्ज हमने पढ़ा था वहां पर? तुम बाहम लेन देन करते हो। तदायंतुम। तुम जी। अच्छा, अब वहां पर एक अन का सीगा आया, अन आया ना, अन जब सिला आता है, तुम जब बाहम लेन देन करो, तर्जुमे में ये तब्दीली आ जाती है, तुम बाहम लेन देन करो। लफ्ज ये था, आपस में तुम मिलजुल कर लेन देन करो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल था ना, ग्रामर ऐसी पढ़ाई जाती है, तो थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं। अच्छा, एक और लफ्ज भी आया था, बा या आइन से बाई, उसका भी सेम यही है, उसका टारगेट सीगा ये था, तबा या तुम आपस में खरीदो फरोख्त करो, बाहम खरीदो फरोख्त करो। ठीक है, अब आसान कर देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे कसरा से, काफसा से यही शक्ल रखते हैं, तो क्या बनेगा? तकासुर, एक दूसरे के साथ कसरत का, या है ना, अल्हाकुम तकासुर, कसरत, एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ कर कसरत करना। फख्र करना, क्या बनेगा? तफाखुर, एक दूसरे पर फख्र करना, मुकाबले के तौर पर। आइन राफा, मजे की बात है, सारे अल्फाज को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या बनेगा? तारुफ, तारुफ दो तरफा होता है हमेशा, आप मुझे जाने, मैं आपको जानू। वजन हम करते हैं, अब एक पलड़े में एक चीज डालेंगे, दूसरे पलड़े में दूसरी चीज डालेंगे, तो हम क्या कहते हैं? तवाजुन। आइन वाव नून, हम कहते हैं ना मदद के लिए। अच्छा, ये वो मदद है, आइन वाव नून, इसमें किसी की मदद जरूरी है, साथ में सपोर्ट जरूरी है, तो हम क्या कहते हैं? ताउन। ताउन। साद दाल माम मीम, इसमें तो बहरहाल अमूमन हम फंसते हैं। हाँ, सदमा इसी से है ना, तो इसका क्या होगा? तसादुम, दो गाड़ियां आपस में टकराई, तसादुम हो गया। नून सीन बा, अगर इस वजन पे आ जाए तो क्या होगा? तनासुब। काफ बा लाम, कबल के लिए भी आता है, कबूल के लिए भी आता है, तो क्या हो गया? तकाबुल, आपस में मुकाबला करना। अच्छा, नून ज़ुआ रा, हमारे एक सियासतदान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, तनाजुर। दाल रा काफ, क्या बनेगा? तदारुक। मिलजुल कर किसी काम का इदराक किया। तो ये देखें, ग्रामर में पढ़ाना कितना मुश्किल है और इस तरह पढ़ना कितना आसान है। मैं इसीलिए अलामतों पे ही जाता हूँ, ये अलामत है, इस तरह समझ ले। तो ये एक चीज थी कि ता आ जाए किसी लफ्ज के असल मादे के अलावा, शुरू में ता आ जाए जबकि सीगा माजी का है, और अलिफ का इजाफा पहले हर्फ के बाद आ जाए, तो इसमें बाहम का असर आ जाता है। जैसे हम कहते हैं वतवासौ, वो जमा में है, मिलजुल कर वसीयत करो, तो वो तवासो इसीलिए आया। तो ये इस तरह का एक लफ्ज था। और भी 2-3 चीजें थी। लाम शर्तिया आ गया था, सॉरी लाम अमर आ गया था। ली के जेर के साकिन है, वो बहरहाल टाइम नहीं है, उसको फिर हम कभी डिस्कस कर लेंगे जब आया। चाहिए। ये चाहिए का वाला, तो मेरे लिए, मेरी तरफ से यही था। बाकी आप लोग जैसा इसमें कोई सवाल हो तो आप बेशक ग्रुप में पूछ लीजिएगा, तो मुझे बता देंगे सलमान भाई इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शुक्रिया जी, जी, आपका बहुत सबका। मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। आप जी, तमाम लोगों को अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज बेटे। हाफिज।